مفت خوری کا انجام، لیمو نچوڑ۔ شہر میں ایک آدمی بے مقصد گھوم رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ اسے محنت مزدوری کر کے روزی کمانے کی عادت نہ تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں نہ ہلاتا تھا اور دوسرے کے رحم و کرم پر مفت میں اپنا پیٹ بھرنے کا عادی تھا۔ شہر کے ہوٹل میں ایک مسافر کھانا کھا رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور آدمی ہوٹل میں اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، جناب، کھانے کا اصل مزہ لیمو کے بغیر ادھورا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے کھانے میں لیمو نہیں ہے۔ اور اس کے کھانے میں لیمو نچوڑ دیا۔ لیمو کے چند قطرے ڈالنے کے بعد مسافر نے کہا، آئیے نا جناب، آپ بھی کھانا کھائیے میرے ساتھ۔ بس مفت خورے کو اور کیا چاہیے تھا۔ وہ ڈٹائی کے ساتھ خوب ڈٹ کر جلدی جلدی پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مسافر سے کہا، آپ کا بہت بہت ہی شکریہ، کھانا واقعی میں لذیذ تھا۔ اب وہ وہاں سے آ گیا۔ بیچارے مسافر کو زیادہ پیسے دینے پڑے۔ ایک دفعہ ایک اور مسافر کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا اور کہا، جناب، آپ کے کھانے میں لیمو نہیں ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ لیمو کے بغیر کھانے کا مزہ کہاں؟ اس آدمی نے کہا، آلاکا، یہ تم نے کیا خوبصورت بات کیا۔ واقعی میں کھانے کا مزہ لیمو کے بغیر ادھورا ہے۔ اس لیمو نچوڑ نے کھانے میں لیمو کے چند قطرے ڈالے۔ دونوں کھانا کھانے لگے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، کھانا واقعی میں لذیذ اور پرتکلف تھا۔ اس آدمی نے کہا، ابھی جاتا کدھر ہے؟ اور اس کو پیٹنے لگا۔ ہائے ہائے، کیوں مار رہے ہو ظالم؟ میں نے تمہارا کیا؟ ابے بندو، میں مار مار کر تمہیں لیمو بنا دوں گا۔ تم نے مجھ کو پہچانا نہیں؟ اس لیمو نچوڑ نے کہا، نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اچھا، مفت کھانا کھا گیا اور تم نے مجھ کو پہچانا نہیں؟ ابے بندو، تم نے پہلے بھی لیمو کے بہانے ڈٹ کر 2 مرتبہ مجھ سے مفت میں کھانا کھایا اور ہر بار مجھے 2000 روپیہ دینا پڑا۔ اتنا کھانا کھاتا ہے تو آدمی ہے یا بھینس کی اولاد؟ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہوٹل کے مالک نے اس لیمو نچوڑ کو بلایا اور کہا، آپ کا کھانا کھانے کا بل 6000 روپیہ بنتا ہے، وہ آپ ادا کر دیں۔ اس لیمو نچوڑ نے کہا، جناب، میرے پاس تو پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، مجھے بہت مار پڑی ہے۔ یہ سن کر ہوٹل کے مالک نے اس کو گربان سے پکڑ کر میز پر ہی گرا لیا اور خوب مارا پیٹا۔ مارنے پیٹنے کے بعد ہوٹل کے مالک نے کہا، اب تم پورا مہینہ ہوٹل میں ہی رہو گے اور برتن مانجو گے، یہی تمہاری سزا ہے۔ لالچی چکن والا۔ پھول نگر نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جہاں پر سب لوگ بہت زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن وہاں پر ایک گڈو چکن والا تھا جو بہت زیادہ لالچی اور ہوشیار تھا۔ گڈو کی دکان سے ہر کوئی چکن بائے کرتا تھا، کیونکہ اس کی دکان کے علاوہ گاؤں پورے میں اور کوئی دکان ایسی نہ تھی جس سے چکن مل جاتا۔ گڈو نے پہلے سے ہی ایک موٹے سے مرغی فارم والے کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے ہوئے تھے اور وہ اس سے سستے داموں مری ہوئی مرغیاں چھپ چھپا کر خرید کر اپنے گاؤں میں لے آتا۔
बड़ा चालाक और होशियार था। वो एक बड़े से टोकरे में मरी हुई मुर्गियों को भरकर रात को अपने घर में लाकर छुपा देता और सुबह दुकान में बेच देता। पहले वो डरता था, लेकिन अब इस काम में वो माहिर हो गया था। जो भी आदमी उससे गोश्त लेकर घर में जाकर पकाता और अपनी खुशी में उसको खाता तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती, उसको उल्टियाँ शुरू हो जाती और वहीं पर वो गिरकर बेहोश हो जाता और गोश्त में से भी बदबू बहुत ज़्यादा आती थी, चाहे कितने भी मसाले क्यों न डाले जाएं। सब यही समझते कि शायद ये तेज मिर्चों की वजह से ऐसा हो रहा है। मर गया रे, बहुत दर्द हो रहा है पेट में, और वो सीधा अस्पताल में पहुंच जाता। घर वाले परेशान होकर डॉक्टर से पूछते कि इसको क्या हो गया है। डॉक्टर कहता कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको हैज़ा हो गया है, ज़रूर इन्होंने कोई ख़राब चीज़ खाई होगी। आज इन्होंने दोपहर के वक्त क्या खाया था? चिकन बिरयानी खाई थी और ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। इस मुर्गी के गोश्त में लाजमी कुछ न कुछ गड़बड़ है। ख़राब गोश्त खाकर सारा गांव बीमार हो गया। सब गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम मिलकर जाते हैं गुड्डू के पास और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बीमार मुर्गियां खाकर पूरा गांव बीमार हो रहा है, क्या वजह है? क्या तुम हमें मुर्दा मुर्गियां खिला रहे हो? मैं तुम लोगों को कैसे बीमार और मरी हुई मुर्गियां खिला सकता हूँ? क्या तुम लोग देखते नहीं होगे, अंधे होगे? ये तुम्हारे सामने है मुर्गियां, मैंने कितनी साफ सफाई रखी हुई है अपनी दुकान की भी, और तुम्हारे सामने ये ताज़ा मुर्गियां मैं तुम लोगों को ज़बह करके रोज़ाना देता हूँ। आजकल हर चीज़ में मिलावट है, क्या पता तुम लोगों ने कौन सी चीज़ खाई है ऐसी मिलावट शुदा जिसमें से तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा लोगों की ख़राब हो रही है और वो बीमार हो रहे हैं। अरे ये तो सही कह रहा है, लाजमी बात है कि किसी और चीज़ में मिलावट होगी। इसकी बात भी ठीक है कि ये हमारे सामने ही ये मुर्गियाँ ज़िबा करता है। हाँ, ये तो ठीक ही है। मुझसे मुर्गियाँ लेनी है तो लिया करो, नहीं तो जाओ बाज़ार में 200 रुपये लगा कर 100 रुपये की मुर्गी खरीद कर वहाँ से ले आया करो। गुड्डू को मुर्दा चिकन बेचने की वजह से काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, इसलिए वो रात को अपना तमाम काम ख़त्म करके काफ़ी सारे पैसे लेकर घर को खुशी खुशी चला जाता, लेकिन वो दूसरे दिन के लिए मुर्दा मुर्गियाँ लाना ना भूलता। उसने रोज़ की तरह ढेर सारे पैसे लाकर अपनी बीवी को दिए। बीवी ने उससे पूछा कि ये तुमने इतने सारे पैसे रोज़ाना कहाँ से लाते हो? तुम आम खाओ आम, पेड़ गिनने से तुम्हें कोई गरज नहीं होनी चाहिए। तुम नहीं ये देख रही कि मैं तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा पैसे रोज़ाना ला रहा हूँ और तुम कह रही हो कि पैसे किसी ज़रूरत नहीं होते। तुम भी एक अजीब औरत हो। गुड्डू की एक छोटी सी लड़की भी थी जो पास ही खड़ी थी, जिसका नाम पिंकी था। पिंकी ने कहा, अब्बू मैं चिकन रोस्ट खाऊंगी। ठीक है बेटा, कल दुकान पर आना और अपने लिए चिकन मुर्गियां जितनी चाहे ले आना, और तुम सुनो, इसे अच्छी तरह मुर्गी को रोस्ट करके देना। दूसरे दिन जब वो दुकान में अपने काम में मसरूफ था और लोगों को चिकन बना बना कर दे रहा था तो उसकी बेटी वहां पर आ गई। अब्बू मुझे भी चिकन देना। ठीक है बेटा, इन दोनों में से जो उस तरफ पड़ा है वो ले जाओ। पिंकी ने जो पहले से तैयार चिकन पड़े हुए थे उनमें से एक को उठाया और खुशी खुशी घर की तरफ चली गई। शाम को जब गुड्डू अपने काम को ख़त्म करने ही वाला था कि उसे घर से फ़ोन आया कि जल्दी घर में आओ, पिंकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो जल्दी से भागता हुआ अपने घर में पहुंचा और देखा कि बेटी नीचे बेहोश पड़ी हुई है ज़मीन पर। हॉस्पिटल में वो डॉक्टर के पास खड़ा था और डॉक्टर से पूछ रहा था कि मेरी बेटी को डॉक्टर साहब क्या हो गया है? तुम्हारी बेटी को भी हैज़ा हो गया है और फूड पॉइजनिंग है जो गांव में दूसरे लोगों को हुई है। ये एक तशवीशनाक बीमारी मालूम हो रही है। तुम्हारी बेटी पर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है, इसलिए इसको बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा और इस पर काफ़ी खर्चा आएगा। गुड्डू ने कहा, डॉक्टर साहब जितना मर्जी है खर्चा आ जाए, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दे।
اس نے اب تک جتنے بھی پیسے جوڑے تھے مردہ مرغیاں اور بیمار مرغیاں بیچ کر وہ سب کے سب ڈاکٹر کے حوالے کر دی۔ اس نے دوسرے دن تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، بھائیو مجھے معاف کر دو، یہ میرے ہی چکن تھے جنہیں کھانے کے بعد تم بیمار ہو جاتے تھے۔ میں فارم والے سے مری ہوئی مرغیاں لاتا تھا اور انہیں آ کر تم لوگوں کو بیچ دیتا تھا زیادہ منافع کے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے میری بیٹی ہی بیمار پڑ جائے گی۔ اب وہ بہت زیادہ بیمار ہے، پلیز مہربانی کرو بھائیو مجھے معاف کر دو، میں تم لوگوں کو 1 مہینہ پورا فری میں چکن کھلاؤں گا۔ لوگوں نے اس کو معاف کر دیا۔ مرغا اور ہیرا، دولت ہر جگہ کام نہیں آتی۔ ایک مرغا بھوک سے بیتاب ہو کر دانے دنکے کی تلاش میں ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ بڑی توجہ کے ساتھ کافی محنت کے بعد ادھر ادھر دیکھنے سے اچانک اسے ایک بہت زیادہ قیمتی ہیرا نظر آیا۔ ہیرے کو دیکھ کر مرغے نے بڑی حسرت کے ساتھ آہ بھر کر کہا، ہائے افسوس، اتنی محنت اور ڈھونڈنے کے بعد مجھے ملا بھی تو صرف ایک ہیرا، جس سے نہ میرے دل کی تشفی ہو سکتی ہے اور نہ ہی میری بھوک مٹ سکتی ہے۔ اے کاش اس ہیرے کی جگہ مجھے گندم یا چاول کا کوئی دانہ مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ پیسہ، دولت، سونا چاندی اور ہیرے سے کسی کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ گندم یا چاول بھی ہمارا پیٹ بھر سکتی ہے۔ لالچ کی سزا۔ 3 بددیانت دوست۔ ایک دفعہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ 3 دوست سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ چلتے چلتے ایک جنگل میں جا پہنچے۔ انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کا ارادہ کیا اور درخت کے پاس گئے۔ درخت کے پاس جاتے ہی انہیں اشرفیوں کی تھیلی ملی۔ تینوں دوست بہت خوش ہوئے۔ تینوں دوستوں کو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک قریبی گاؤں سے کھانا لینے کے لیے ایک دوست کو بھیج دیا۔ کھانا لینے جانے والے دوست کے دل میں تمام اشرفیوں کو حاصل کرنے کا لالچ پیدا ہو گیا۔ تیسرے دوست نے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ دوسرے دونوں دوست کھانا کھا کر مر جائیں۔ ادھر دوسرے دونوں دوست بھی لالچ میں آ گئے۔ جب وہ کھانا لے کر واپس آیا، دونوں نے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد خوشی خوشی دونوں کھانا کھانے لگے، لیکن دونوں ہی کھانا کھاتے مر گئے۔ اشرفیوں کی تھیلی اسی طرح پڑی رہ گئی، لیکن اندھی لالچ نے تینوں دوستوں کی جان لے لی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پیاسا کوا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں پانی کی تلاش میں تھیں، مگر پانی کہیں نظر نہ آیا۔ اچانک ایک باغ میں اسے ایک گڑھا نظر آیا۔
उसने पानी पीने की बहुत कोशिश की मगर घड़े में पानी बहुत कम था। उसकी चोंच पानी तक ना जा सकी। कौवा बड़ा परेशान हुआ और उसके जहन में एक नई तरकीब आई। वो उड़ कर गया और अपनी चोंच में कंकर लेकर वापस लौटा। ये कंकर उसने घड़े में डाल दिया। पानी कुछ ऊपर आया मगर वो अब भी पानी नहीं पी सकता था। इसी तरह वो मुसलसल कंकर घड़े में डालता रहा और पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता गया। कौवे की इस अक्लमंदी और मुसलसल मेहनत से पानी घड़े के मुंह तक आ गया। उसने जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई, खुदा का शुक्र अदा किया और उड़ गया। वाकई ही लगातार मेहनत कामयाबी और कामरानी का जीना है। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में नदी जो पुल के बगैर थी, उसमें सिर्फ एक लकड़ी की लाठ रखी हुई थी जिस पर से सिर्फ एक आदमी गुजर सकता था। एक दफा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दो बकरियां आमने सामने इस नदी पर आ गईं। उन्हें नदी अबूर करना थी। एक बकरी इस किनारे पर खड़ी थी जबकि दूसरी बकरी दूसरे किनारे पर खड़ी थी। दोनों बकरियां एक ही वक्त में नदी को अबूर करने के लिए चल पड़ी। दोनों का पुल के दरमियान में मिलाप हो गया। अगर दोनों बेवकूफ़ी का मुजाहरा करती और ज़बरदस्ती लड़ भिड़ कर गुजरने की कोशिश करती तो दोनों नदी में जा गिरती और डूब जाती। इसके बजाय उन्होंने अक्लमंदी और सुलह पसंदी से काम लिया। एक बकरी लकड़ी की लाठ पर बैठ गई और दूसरी इसके ऊपर से गुजर गई। अब पहली बकरी उठी और आराम से दूसरे किनारे पर पहुंच गई। इस तरह अक्लमंद बकरियों ने सुलह पसंदी और तहामुल मिजाजी से काम लेते हुए अपने लिए सलामती का रास्ता निकाल लिया और दोनों बकरियां अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। जबकि अगर पहले मैं गुजरूंगी के चक्कर में पड़ती तो नदी में गिर जाती। देखा, अगर सुलह पसंदी और अमन पसंदी की राह निकाली जाए तो सबका ही इसमें फायदा होता है। ओए बाबा तो वहाँ में उड़ रहा है, मेरी तो ब्रेकें ही फेल हो गई हैं। ओए बाबा तो बॉक्सिंग भी करता है। ओए ओए गुड ओए बुड्ढे आए ओए तेरे ओए मैं तो मजाक पे करना है बाबा जी, तुसी मेरे दर सीधे ही हो गए हो। कोई बुढ़ा आगे किसा आखे वो बूथी अपनी देखी है? अपनी उम्र देखो, लगने मार खाने ना दिल पे आखने मेरे। तू बीमार से मैं देसी घ्यो खाता है यार। लगना बाबा जी तू सानी हड्डियां लो पियां करनी है। ऐस उम्र भज गए ना दोबारा जुड़निया नहीं ने। वैसे आई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, माई नेम इज बोका शाह। जे अजीबूथी हो जाई ना। चल आ जो, ज्यादा गला ना कर। आज बुढ़ा तू मेरे हाथों मार के रह ओए मेरा नाक पनी से ले फिर मेरी स्पेशल केक जीड़ी मैं डंगरा मारना होना। ओए बोके बजा सटे ओए मजा आ गया ओए के चैंपियन शॉट लाई ओए, मैं तो रोनाल्डो बन गया। इंडिया हाथों के भूत बातों से नहीं मानते, अब कुछ अक्ल ठिकाने आई है। मुझे कुछ आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? ये तारे दिन में कहां से आ गए हैं? ये अंधेरा क्यों है? अच्छा प्यारे दादा जान, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। बुढ़ा जाना हो ऐसे।
اب کیا ہوا پیارے دادا جان؟ یو آر سو اسٹرانگ اینڈ بیوٹیفل پیارے دادا جان، اب آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ کیا انعام دیں گے؟ لائیے پھر ادبی انعام، کوئی ٹرافی شرافی۔ اوے جن کا میں سمجھیا تینوں ایک خوراک نال آرام آ جائے گا، لیکن مینوں لگدا ہے تینوں دوئی خوراک دینی چاہیے۔ آئے اوئے 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 آئے ماری سٹیا، اوئے 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 آئے بہت مارا رے پیارے دادا جان نے۔ بوڑھا جان نہ ہوئے تھے، مار کے پتہ نہیں کدھر چلا گیا، کہ سوندا تو نہیں پیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل تھا جس میں ایک شیر بہت بیمار تھا۔ چونکہ جنگل کا بادشاہ بیمار تھا، اس لیے ہر ایک جانور اس کی عیادت کے لیے آیا تھا، لیکن لومڑی کسی کام کی وجہ سے نہ آ پائی تھی۔ ایک بھیڑیا جو شیر کا خاص ملازم تھا، اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور لومڑے کے خلاف چغل خوری کرتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، لگتا ہے لومڑی کو آپ کی بالکل بھی پرواہ نہیں، وہ اسی لیے تو نہیں آئی، وہ چاہتی ہے کہ آپ جلد سے جلد مری جائیں۔ یہ سنتے ہی شیر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، جاؤ اور فوراً اس گستاخ لومڑی کو میرے سامنے لے کے آؤ۔ حکم ملتے ہی بھیڑیا فوراً لومڑی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور اس کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، لومڑی بہن، چلو تو صحیح، تمہیں بادشاہ سلامت نے طلب کیا ہے، تم ان کی عیادت کے لیے جو نہیں آئی۔ چونکہ یہ بادشاہ وقت کا حکم تھا، اسی لیے لومڑی انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ بھیڑیے نے ضرور چغل خوری کی ہوگی، کیونکہ بھیڑیا اس سے نفرت کرتا تھا۔ اے لومڑی، آؤ، تم میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئی؟ اچھا سلامت، میں آپ کی بیماری کا علاج ڈھونڈ رہی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ کیا تمہیں علاج ملا ہے؟ جی بادشاہ سلامت، اگر آپ بھیڑیے کو مار کر اس کو کھا جاتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بھیڑیا آپ کے خاص ملازموں میں سے ہونا چاہیے۔ نہیں بادشاہ سلامت، مجھے مت کھانا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں تھا جس میں ایک کسان اسلم اور اس کی بیوی نادیہ رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بوڑھی ماں بھی رہتی تھی۔ اسلم بہت زیادہ غریب تھا، اس کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس میں وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا تاکہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکے۔ ہر بار اسلم کی فصل اچھی ہوتی تھی، لیکن اس بار بے موسمی بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اسلم کی فصل خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ اسلم بہت زیادہ پریشان تھا۔ زوروں کی بارش تھمنے کے بعد اسلم اپنے کھیت میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اسلم کی ساری فصل تباہ ہو گئے ہے اور کھیت ویران پڑا ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت غمزدہ ہوا اور رونے لگا۔ گھر آ کر اس نے یہ بات نادیہ اور اپنی ماں کو بتا اور وہ سب بھی رونے لگے۔ رات کو اسلم نے مسجد میں جا کر اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، میری مشکلات کو دور کر اور میرے رزق کا بندوبست کر۔
क्योंकि सबको खुलाने वाली ज़ात तो ही वाहिद ला शरीक है। सुबह जब हुई तो असलम खेत की तरफ रवाना हुआ। किया देखता है कि खेत में सोने की फसल लगी हुई है। असलम ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। अक्लमंद किसान। पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। वो आम लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करता था। एक दिन बादशाह का गांव से गुजर हुआ। उसने एक किसान को मेहनत से काम करते हुए खेतों में देखा। उसने किसान से पूछा, ऐ मेहनती किसान, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? उस किसान ने जवाब दिया, अरे बच्चा सलामत को मेरा आदाब है, मेरा सलाम है अजूर वाला, मैं तकरीबन 4 आने इस खेत से कमा लेता हूँ। ऐ गरीब मेहनती किसान, इससे हमारी गुजर औकात हो जाती है। तो किसान ने जवाब दिया, बात सलामत में 1 आना कर्ज देता हूँ, 1 आना कर्ज उतारता हूँ, 1 आना कुएं में डालता हूँ और 1 आना अपने और अपने बीवी बच्चों पर खर्च करता हूँ। बादशाह ने बड़ी हैरानी से पूछा, ये कर्ज देना और उतारना और कुएं में डालने का मतलब क्या है? किसान ने बड़ी दनाई से जवाब दिया, बादशाह सलामत, 1 आना कर्ज उतारने का मतलब अपने वालिदैन पर खर्च करता हूँ, 1 आना कर्ज देने का मतलब अपनी औलाद पर खर्च करता हूँ और 1 आना कुएं में डालने से मतलब है कि अल्लाह की राह में मैं खर्च करता हूँ। बादशाह उसकी इतनी दानाई भरी बातें और अक्लमंदी के बोल सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने किसान को कहा, ऐ अक्लमंद किसान, जब तक तुम मेरा 100 बार चेहरा न देख लो तो इस बात का राज किसी और को मत बताना। किसान बड़ी आजिजी और सादतमंदी के साथ बोला, जो हुक्म मेरे प्यारे हजूर बादशाह सलामत का। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार में अपने सबसे काबिल वजीर से यही 3 सवालों के जवाब पूछे। बादशाह बोला, ऐ मेरे काबिल वजीर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर 4 आने कमाए जाएं और उनमें से 1 आना कुएं में फेंका जाए, 1 आना कर्ज उतारा जाए और 1 आना कर्ज दिया जाए, इनका मतलब क्या होता है? क्या मुझे बताओगे? बादशाह की ये बातें सुनकर वजीर सोच में पड़ गया और वो सोचने लगा कि लाजमी बात है कि बादशाह को ये बातें कहीं बाहर से मालूम हुई है, क्यों ना इससे मोहलत ली जाए और पता किया जाए। बादशाह हजूर, अगर मुझे आप 1 दिन की मोहलत दे दें तो मैं इन सवालों के जवाब आपको दे सकता हूँ। बादशाह को पता था कि किसान के अलावा कोई भी इन सवालों के जवाब नहीं जानता और मैंने किसान को 100 बार चेहरा देखने से पहले किसी और को बताने से मना कर रखा है और वो मेरे हुक्म की अदूली नहीं करेगा। तुम्हें इजाजत है, लेकिन सिर्फ 1 दिन की मोहलत है। शुक्रिया बादशाह सलामत, मैं जरूर कल तक इन सवालों के जवाब मालूम करके आपको बता दूंगा। ये बात कहकर वजीर वहां से चल दिया। शाम होते ही इन सवालात का जवाब लेने के लिए बादशाह का सबसे काबिल वजीर किसी दूसरे बंदे की तलाश में निकल खड़ा हुआ। बादशाह का वजीर चलता हुआ उसी जगह पर आता है जहां पर वो किसान खेतों में काम कर रहा होता है। वो आकर किसान से कहता है, ऐ मेहनती किसान, क्या मुझे तुम 3 सवालों के जवाब बता सकते हो? मेरे लिए ये इंतहाई जरूरी है कि मैं कल इन सवालों के जवाब बादशाह को बता दूं। अरे बाबा,
वजीर साहब आप पूछें, अगर मुझे उनका जवाब आता हुआ तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। वजीर वही 3 सवाल उसके सामने दोहरा देता है। इन सवालों के जवाब तो मुझको आते हैं, लेकिन अगर आप मुझे 100 अशरफी अनायत करें तो मैं इसका जवाब आपको दे सकता हूँ। इस पर वजीर एक 100 अशरफियों की भरी हुई थैली किसान के हवाले कर देता है और किसान उसको उसके सवालों के तमाम जवाब दे देता है और वजीर वहां से वापस महल की तरफ चल पड़ता है। दूसरे दिन जब दरबार शुरू हुआ तो बादशाह ने वजीर से कहा, हाँ मेरे काबिल एतबार वजीर, तुम्हारी मोहलत आज खत्म हुई, क्या तुम अपने सवालों के जवाब लेकर आए हो या नहीं? तो वजीर ने बड़ी सादतमंदी के साथ जवाब दिया, हाँ मोहतरम बादशाह सलामत, मैं आपको नाराज कैसे कर सकता था। मैं उन तीनों के जवाब ले आया हूँ। कर्ज उतारने का मतलब है अपने वालिदैन को पर खर्च करना, और कर्ज देने का मतलब है अपनी औलाद पर खर्च करना, और कुएं में एक आना डालने का मतलब है कि अल्लाह की राह में खर्च करना। फिर बादशाह ने कहा, मोहतरम वजीर, तुमको इन सवालात के जवाब कहाँ से मिले हैं और किन ने तुमको बताया है? बादशाह सलामत, मुझे एक किसान ने इन सवालात के जवाब बताए हैं। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने सिपाही को हुक्म दिया, सिपाही जाओ, उस दिन जिस किसान से हम मिले हैं उसको फौरन पकड़कर मेरी बारगाह में हाजिर करो। जो हुक्म हजूर वाला, मैं अभी इसको गिरफ्तार करके आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। सिपाही उसी वक्त उन खेतों में पहुंच जाता है जहां पर वो पहली बार किसान से मिला था। किसान, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी है तो फौरन चलो मेरे साथ बादशाह के महल में। किसान डर जाता है और कहता है, अरे बाबा क्या बात है, खैर तो है, तो अभी मेरे साथ इस वक्त चलो, तुम्हें खुद बहुत पता चल जाएगा। सिपाही उसी वक्त किसान को लेकर दरबार में दोबारा से हाजिर हो जाता है। सिपाही कहता है, बादशाह सलामत, मैं इस धोखेबाज और फरेबी को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अरे बाबा बादशाह सलामत, मेरी तरफ से आपको आदाब है, सलाम है। तुम्हारा कोई भी सलाम और आदाब कबूल नहीं किया जाएगा। बताओ वजीर, क्या ये वही किसान है जिसने तुमको बताया था? जी हाँ बादशाह सलामत, ये वही है किसान जिससे मैंने अपने सवालात के जवाब पूछे थे। क्यों किसान, मैंने तुमको कहा नहीं था कि तुम जब तक मेरा 100 मर्तबा चेहरा न देख लो तो इन सवालों के जवाब, ये राज, ये बातें किसी और को मत बताना, लेकिन तुमने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। क्या तुम अपनी सिपाही में कुछ कहना चाहोगे? जी हाँ बादशाह सलामत, मैंने इससे 100 सोने के सिक्के लिए थे। आप इस वक्त दौरे हाजिर के बादशाह हैं, उन पर आपकी तस्वीर नस्ब थी, जिसकी वजह से मैंने 100 मरतबा आपके चेहरे को देखा है और फिर इसको सवालात के जवाब दिए हैं। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, क्या क्या अक्लमंदी की बातें हैं। तुमने अशरफियों पर मेरा चेहरा 100 मरतबा देखा है और फिर इसको सवालात के जवाब दिए हैं। वाह, इस जवाब से मैं बड़ा खुश हुआ हूँ और आज से मैं तुम्हें अपना वजीर खास मुकर्रर करता हूँ। ऐसे अक्लमंद लोगों की मुझे जरूरत है। सेब ले लो सेब, मीठा मीठा सेब, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एप्पल। A for apple, B for सेब, ले लो सस्ता तरीन रेट, पिछले 10 मिनटा ने अंदर अंदर सस्ता तरीन रेट, सेब ले लो सेब। बाबा जी ये ओए बाबा जी किसा आखी, ओए अल्लाह मैं तेरे को कोई 2-4 साल ही बड़ा सा।
ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਕੇ ਆਖਾਂ? शाबा पुत्र अंजू पुछना होना है ना बंदा, मैनू तू अंकल आख, अंकल। ਅੰਕਲ ਇਹ ਕਿੰਜੂ ਲਾਏ ਨੇ? ये जिंजू भी लाए ने, तुदा के वे? ਅੰਕਲ ਇਹ बेचने नहीं हो, आप खासो। आप तो मैं कदे ना सही जा सूंघिया भी नहीं है, मैं बेचने वास्ते ही इत्थे खलता हो जाना। ਇਹ इतना पे पूछना ना किंजू लाए ने। अल्लाह मैं तेरा मतलब समझी गया, यानी कितने पैसे ने देनी हो? ए पुत्रा 400 रुपए दर्जन नी। हैं 400 रुपए दर्जन? तुसी दूरों पे वाजा मारने हो, सस्ते लाए ने। पिछले आधे घंटे नी रिकॉर्डेड कीमत है सस्ती तरीन। एक पिया ने अंकल जी, दिहाड़ा ने हिसाब की कीमत नहीं बदली होनियां। पुत्रा लगना नवा आया है पाकिस्तान में, बाहरले मुल्कों आया है तू? बाहरले मुल्कों ना आया, अपने घरों आया, पर मैं सिर्फ 2 दिहाड़ा बाद ही चक्कर रुपया लाना बाजारे आ। हला 2 दिहाड़ा बाद आया है पुत्रा, इतने 5 मिनटा ना नहीं पता लगना तब्दीली आई हुई है, तब्दीली। इंजो ना तब्दीलियां बदना करो। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा विच कितनी सोहनी तकरीर की है। सिर्फ वो तकरीरां ही सोहनियां करना है ना, फिर तकरीरां ही सुनिया करो ना, खाया पिया कुछ ना करया करो कि नहीं तो 10-400 रुपए दर्जन तो तले ना देने। नाकार अंकल जी, ये सेब कदों तो दर्जन ने हिसाब से बिकने लग गए। जदों तो तब्दीली आई है ना, ते जरदारी कार बिलावल पैदा हुई है, अदों तो जेड़ा है ना सेब दर्जन ने हिसाब से बिकने लग गए ने। वैसे तो इमरान खान पे आखना असा महंगाई ते काबू पा के दे, हर शै सस्ती हो गई है। इट्टी टने खेडने लिया तुसी वजीर आजम बड़ा सो ना, ते फिर इंजी हो सी उस अगे पता है आलू टमाटर ना पाओ, वो ते का खाने। अला अंकल जी ना गला छोड़ो, एक सेब किंजू देसो। अल्लाह सिर्फ शोशिया मारने ने पता, फटी हुई शर्ट ला के आ गए हैं तो पैसा कोल एक नहीं, पूरे 100 रुपये ना जड़ा एक सेब है। 100 रुपये ना एक सेब हो, 400 रुपये ने एक और दर्जन हो, 100 रुपये ना एक सेब देनी हो ना, एक कोई हिसाब गलत नहीं हो गया? तो ये तब्दीली आई हुई है, इतने सारे साइंस ने मैथ ने सारे किस्म ने जड़ा रूल कहते फेल हो चुलने ने। तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, कोट सको तो कोट लो, तब्दीली आई रे। नदीम एक गरीब वालिदैन का बच्चा था। इसके वालिद दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे और जो कुछ कमाते थे उनसे घर वालों का मुश्किल से पेट भरता था। वालिदैन के गरीबी को देखते हुए नदीम ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी और जल्द ही मेहनत मजदूरी के लिए जाने लगा। सबसे पहला काम जो उसे मिला वो एक अमर आदमी के घर में खानसामा का था। वो वहाँ मजे मजे के खाने बनाता और खुद भी खाता। शाम को घर आते हुए अपने माँ बाप के लिए भी मजे मजे के खाने लाता। माँ बाप नदीम से बहुत ज्यादा खुश थे और उसे दुआएं देते थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और नदीम बड़ा हो गया। इसकी माँ और बाप दोनों फौत हो चुके थे और अब उसकी एक बीवी हिफ्सा और 2 बच्चे रोजी और राहिल थे। नदीम जिस सेठ के घर खानसामा था इसका इंतकाल हो चुका था और उसके दोनों बेटे अय्याश थे। एक बेटा घर से कोई कीमती चीज चुराता तो नदीम के सर इल्जाम लगा देता और दूसरा बेटा भी ऐसे ही करता। इस सेठ की बीवी और इन 2 अय्याश बेटों की वालिदा ये सब कुछ जानती थी, इसलिए नदीम को कुछ नहीं कहती और खामोश रहती थी। नदीम पर इस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब उसकी मालिकन यानी सेठ की बीवी भी फौत हो गई। नदीम बहुत ज्यादा दिलबरद शत्ता हुआ और उसने सेठ का घर छोड़ दिया क्योंकि उसने सोचा पहले तो मेरी मालिकन सब कुछ जानते हुए मुझे कुछ नहीं कहती थी, अब इसके अय्याश बेटे मुझे जेल में डलवा देंगे। घर आकर जब इसने ये बात हिफ्सा को बुती तो वो भी परेशान हो कहने लगी कि अब हमारा क्या होगा, बच्चे अभी छोटे हैं और पढ़ाई करते हैं, महंगा बहुत ज्यादा और थोड़े महीनों में हमारी सारी जमा खर्च हो जाएगी। नदीम ने कहा, तुम फिक्रमंद क्यों होती हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज से मैं तुम सब लोगों को अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाऊंगा।
इस तरह नदीम रोजाना अपनी बीवी और बच्चों को अच्छे अच्छे खाने बनाकर देने लगा। सबको ही इसका बना हुआ खाना बहुत पसंद आया, जिस पर हिफ्सा ने नदीम को गांव में ही अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का मशवरा दिया। हिफ्सा ने कहा, आप गांव में ही छोटा सा रेस्टोरेंट खोल ले, जैसे मुझे आपके हाथ का खाना पसंद है इस तरह दूसरे लोगों को पसंद आएगा। दूसरे दिन नदीम ने अपने गांव में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। पहले तो किसी ने भी तवज्जो ना दी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग नदीम के रेस्टोरेंट पर आना शुरू हो गए। जो को भी एक दफ़ा खाना खाता वाह करता और दोबारा आता और नीबिश की फरमाइश करता। इस तरह नदीम का होटल अच्छा चलने लगा और उसकी तमाम परेशानियां दूर हो और उसका सारा ख़ानदान अच्छी ज़िंदगी बसर करने लगा। सच कहते हैं कि को भी हुनर आता हो तो वो इंसान को भूखा नहीं सोने देता। जैसे को तैसा, ताजर की होशियारी और एक मन सोना। अब एक सौदागर को सफर तिजारत पर कहीं बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ। उसके पास एक मन सोना था। उसे ये फिक्र थी कि उसकी अदम मौजूदगी में कोई चोर ये सोना चुरा ना ले। उसने ये सोना एक बोरी में बंद किया। उस ताजर ने बोरी को अपने एक दोस्त के पास बतौर अमानत रख दिया। ये दोस्त लालची और धोखेबाज था। इसकी नीयत में फतूर आ गया। इसने सोचा, अगर मैं सोना देने से मुकर जाऊं तो कैसा रहेगा। इसने कहा कि ये वाली तरकीब अच्छी है, इस मंसूबे से मैं अमीर हो जाऊंगा। ताजर कामयाब सफर के बाद वापस लौटा। उसने अपने दोस्त को कहा, अरे भैया, मेरे सोने का ख्याल रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे मेरा सोना वापस कर दो। उस दोस्त ने बड़ी डटाई से कहा, मुझे बहुत अफसोस है, आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपका सोना गोदाम में रखा था, उसे चूहे खा गए। ताजर बड़ा परेशान हुआ, मगर उसकी बात पर एतबार किए बगैर भी कोई और चारा न था। अब ताजर ने अपने दोस्त से सोना वापस लेने के लिए मंसूबा बनाया। उसने अपने दोस्त को बीवी बच्चों समेत खाने पर बुलाया। सब खाने में मसरूफ थे। ताजर ने अपने दोस्त के बेटे को कहीं छुपा दिया। सब ने खाना खा लिया। इसका दोस्त वापस जाना चाहता था, मगर उसके बेटे का कुछ पता न चल रहा था। आखिरकार उसने ताजर से कहा, पता नहीं मेरा बेटा किधर चला गया है, अभी तो यहीं पर था। ताजर ने उसे बताया, अरे भाई, मैं जब बाहर निकला तो देखा एक चील तुम्हारे बेटे को उठाकर ले जा रही थी। ताजर के दोस्त ने कहा, भला ये कैसे मुमकिन है? चील कैसे इतने वजनी लड़के को उठा सकती है? ताजर ने कहा, अरे भाई, इसमें क्या बात है? जिस मुल्क के चूहे मन भर सोना खा सकती हैं, वहाँ की चीलें बच्चा क्या नहीं उठा सकती? ये सुनकर उसका दोस्त बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने ताजर को उसका सारा सोना वापस कर दिया। बहुत पहले की बात है, पहाड़ों के दामन में एक गांव था जिसका नाम था खुशहालपुर। उस गांव में दो दोस्त रहते थे जिनमें बहुत गहरी दोस्ती थी और उनकी दोस्ती सारे गांव में मशहूर थी। एक दिन उन दोनों दोस्तों को किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा और रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था
वो गांव से निकल पड़े। चलते चलते जंगल के दरमियान में पहुंच गए और तब तक अंधेरा करीब आ चुका था। वो दोनों आराम की गर्ज से एक दरख्त के नीचे बैठ के और आग जला ली। अभी बैठे ही थे कि मनहूस शेर के घुराने की आवाज आई। पहला दोस्त थोड़ा चालाक था। वो दूसरे से पहले भागकर दरख्त पर चढ़ गया। दूसरा दोस्त कहने लगा, अरे मुझे भी ऊपर खींच लो वरना शेर मुझे खा जाएगा। मैं ऊपर नहीं खींचूंगा। अगर मैंने तुम्हें ऊपर खींच लिया तो शेर हम दोनों को खा जाएगा। अगर तुम नीचे रहते हो तो शेर सिर्फ तुमको ही खाएगा और मैं बच जाऊंगा। ये सुनकर दूसरा दोस्त बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो अपना सांस बंद करके जमीन पर लेट जाता है। इतने में शेर झाड़ियों के पीछे से निकलकर उस दोस्त के पास आ जाता है जो जमीन पर लेटा हुआ होता है और चुप कर उसके कान में कहता है, दोस्त वो जो मुसीबत में आए। ये कहकर वो शेर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दरख्त पर बैठा दोस्त नीचे आ जाता है और अपने दोस्त से पूछता है, उस शेर ने तुमसे क्या कहा? उस शेर ने मुझसे कहा, मैं वफादार दोस्त को नहीं बेवफा दोस्त को खाता हूँ। इतना कहकर वो दोस्त आगे बढ़ जाता है और अपना सफ़र अकेला ही तय करने लगता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उसका दोस्त बेवफा था और उसे इस बेवफा दोस्त की अब कोई ज़रूरत नहीं थी।